landed in Jalna. I am in Wardha. Rajdeep Sardesai in Nanded. Kolhapur, Sindhudurg in Pune, in Baramati, in Bid. In Thane, in Malegaon Central. क्या होगा चुनाव में? हिंदू और मुसलमान एक पैंट है तो दूसरा शर्ट है. Marathi Manus, you could argue, is divided. Is it though profitable to do sugarcane farming or not? No. पाणीच नाही आहे तिथे. पाणी नाही बिलकुल. पाणी प्यायची वांदी म्हणून आम्ही इकडे येतो ना. कहाँ जॉब करोगी? नागपुर में या कहीं बाहर जाना है? बाहर जाना है. नागपुर में उतने अच्छे जॉब्स नहीं है. महंगाई कम कर दो. महंगाई कम कर दो. कोई भी सरकार हो, युवा ये चाहेगा कि ये बिजनेस डेवलपमेंट और अपना शहर जितना डेवलप होगा उतना ज्यादा बिजनेस आएगा. क्या कोई तनाव है या चुनाव के टाइम पे तनाव बढ़ता है? नहीं तनाव बिल्कुल भी नहीं बढ़ता यहाँ पर. नारायण राणे यहाँ मंत्री है, उन्होंने कुछ करवाया कि नहीं? नहीं, वो उन्होंने तो अभी तक कुछ नहीं किया है, लेकिन जो आप पहले आदमी है जो मुझे कह रहे हैं कि नारायण राणे ने कुछ नहीं किया. सबसे बड़ी परेशानी क्या है मालेगांव के लोगों को? जो गरीब है उनको स्कूल की परेशानी, कॉलेज की परेशानी, हॉस्पिटल की परेशानी. Politics is very fishy business. From chopper to घोड़ा. बस 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 ये मैं पुराना घोड़ा हो गया हूँ. चलो. समसा नको मला. ये है मेरा वड़ा पाव. कोकम शरबत है ना, फर्स्ट क्लास है ना, फ्रेश है. लवली. दिस इज माय होमलैंड एज आई सेड. महाराष्ट्र माझा. Namaskar. Hello and welcome to a very special show that's coming to you from Mumbai, the city like no other. We are ending our journey on Maharashtra Maza in my very special city of Mumbai with this wonderful audience here. Give them all a very big hand. We are here in Mumbai as Maharashtra is set to go to the polls in this big election battleground state. We've crisscrossed the entire state of Maharashtra. We've traveled 28 districts in the last 10 days. And we are ending in the country's commercial capital, the Soneri Nagri, the city of gold, the city of dreams. And we are asking the big question today. Mumbai or Maharashtra ka big boss kaun? Who will be the big boss of Mumbai and Maharashtra exactly a week from now? To answer that big question, we are joined by special guests. Krishna Hegde is a former MLA and he is with the ruling Shiv Sena in Maharashtra. I am joined by Rajiv Pandey. He is the spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Charan Singh Sapra is a familiar face on TV from the Congress Party. And I am joined by Anand Dubey, the ever-smiling spokesperson of the Shiv Sena UBT. Namaskar. आप सभी को मैं एक सवाल पूछूंगा. One question at the start. I want one straight answer, 30 seconds each. Why do you think the people of Mumbai should vote for your party? What is the biggest issue in Mumbai? Krishna Hegde, you first. See, the Mumbai Municipal Corporation was ruled by the Shiv Sena BJP for a long time under the leadership of Uddhav Thackeray ji. And you know that since 40 years, there's 40,000 crores of budget every year. And for 30 years, they put Mumbai down the drain. Whether it's the schools, whether it's the hospitals, whether it's infrastructure, whether it's flyovers, रास्ते में खड्डे है क्या खड्डे में रास्ते समझ में नहीं आ रहा है. और वाटर सप्लाई deficit, garbage disposal not in order. And I think people are fed up now. Ever since Eknath Shinde ji came here, 850 kilometers of roads we are concretizing. Water supply we've regularized. Apart from that, even during COVID, the kind of corruption they had, 6,000 crores of corruption only in COVID, even in body bags, even in khichdi, and even in medicines. Utterly distasteful. And I think this is a government, 24 hours we work for the people, Eknath Shinde and the Maya Yuti, and therefore we think
We are not running a Facebook live government like Uddhav Thackeray. We are running a face-to-face government. We have given Mumbai all the infrastructure, Atal Setu, Coastal Road, Metro, everything we have given. Can I just ask you one question before I move on? When Eknath Shinde was part of Shiv Sena, you had no problem. जब BMC में Eknath Shinde was also part of the same Shiv Sena. अब सब कुछ बुरा हो गया. I'll answer. Eknath Shinde was not the part of the BMC. He was the part of the TMC, and the TMC was running regularly. Thane Municipal Corporation. And therefore, Eknath Shinde थाने में सब कुछ ठीक था बराबर और BMC में करप्शन. हाँ, आपने कहा था क्योंकि BMC अंडर उद्धव ठाकरे, Thane under Eknath Shinde, and that's why we kept winning Thane all the time, and that's why today Eknath Shinde ji, the doer, is the Chief Minister of Maharashtra. आनंद दुबे, इसका जवाब दीजिए जो मैंने पूछा आपको. लोगों ने उद्धव बाला साहेब ठाकरे या उद्धव ठाकरे को क्यों वोट देना चाहिए? वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ था बीएमसी में, इसलिए वोट मत दीजिए. आप बताइए क्यों वोट देना चाहिए उद्धव बाला साहेब ठाकरे को? राजदीप सर नमस्ते, आपका मुंबई में स्वागत है. थैंक यू. सिंस लास्ट 30 years continuously शिवसेना the elections because of the Mumbaikar continuously giving to us blessing. हमने कुछ काम किया होगा तभी तो 30 वर्षों से लगातार हमें चुन के दे रही हैं. और सुनिए, कोरोना के संकट काल के समय में जिस धारावी मॉडल की भारत ही नहीं पूरे दुनिया में सराहना हुई, उसे ये लोग कैसे भूल जाते हैं. जिस मुंबई में आपने देखा कि इतने भयंकर महामारी में पूरी दुनिया में हाहाकार था, लेकिन मुंबई सुरक्षित हाथों में थी ड्यू टू उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, शिव सैनिकों के द्वारा. तो हम वही काम तो बताएंगे जो हमारा इतिहास है. ये क्या बताएंगे? इन्होंने तो ये कहते हैं खिचड़ी स्कैम हुआ था, ये कहते हैं कोविड में स्कैम हुए थे. लोगों को जब भूख लगी थी तो खिचड़ी देकर उनका जीवन बचाया था. वो स्कैम नहीं. जो अमोल भैया कीर्तिकर जिनके ऊपर आरोप लगाते, मात्र 48 वोटों से जानबूझकर इनकी नकली शिवसेना ने हरा दिया. ये क्या बात करेंगे राजदीप सर? आप भी जानते, आप एक मुंबईकर हैं, आपण एक मराठी माणूस आहोत, आपल्याला माहित आहे असली कोण आहे, नकली कोण आहे. आणि आमच्या सोबत आमचं चरित्र आहे. आज आमचे दैवत हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे साहेबांची पुण्यतिथी आहे. आम्ही त्यांची कसम खाऊन सांगतोय की महाविकास आघाडी आणि शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में ही मुंबई और महाराष्ट्र का विकास तय है. ठीक है. Yes, today is actually Bala Saheb Thackeray's punyatithi, his death anniversary, and very interesting. Charan Singh Sapra, Rahul Gandhi has suddenly remembered Bala Saheb Thackeray. इतने साल तो भूल गए थे, suddenly remembered Bala Saheb Thackeray. Please tell me, Charan Singh Sapra, why should people be voting for your Mahavikas Aghadi in Mumbai? See, number one, the party which has won only one seat in Mumbai in Lok Sabha elections, how can they claim कि मुंबई पे उनका कंट्रोल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी? और दूसरी बात, जो आपने कहा कि लोकसभा और विधानसभा में फर्क है, प्लीज. लोकसभा दे वन सीट. अभी 3 महीने पहले हुआ, देख लेना 20 तारीख को क्या होता है. You will get the results. Now, as far as Mumbai is concerned, what are they talking about? See the situation, law and order situation over here. Baba Siddiqui is killed on the road. This is the situation of Mumbai. छगन भुजबल जो इनके मंत्री हैं, उसके ब्लॉक प्रेसिडेंट की हत्या होती है सड़क पर, 22 बार चाकू मार दिया जाता है. सचिन कुर्मी, अगर मैं नाम याद हो तो. गोसालकर, फेसबुक लाइव, हैव यू हर्ड? फेसबुक लाइव पर मर्डर होता है और आज तक उसकी क्या तहकीकात हुई है पता नहीं है. सो दिस इज द सिचुएशन ओवर हियर. इफ यू गो आउट ऑफ मुंबई, पुणे में कोयता गैंग, नागपुर के अंदर गैंग वॉर. This is the situation under महायुति. This is a महाभ्रष्ट युति. इन्होंने मंत्रालय को घोटाला केंद्र बना दिया. Sir, when you were in power, your home minister was arrested. Anil Deshmukh was arrested. He was accused also of misappropriation of funds. He was accused of corruption. He spent more than a year in jail. So that, you are the first time in the history of Maharashtra, the home minister is put behind bars. You are accusing them of corruption. They will put 4 fingers at you. You yourself said he was accused. कन्विक्शन नहीं हुआ है. और हमारा हिंदुस्तान का कायदा कहता है जब तक कन्विक्शन नहीं होता है उसको आप कन्विक्टेड भी कह नहीं सकते. ये तो इनकी आदत है. मींस स्मीयर कैंपेन. They are involved into smear campaign everywhere and anywhere. That is the condition of Bharatiya. And now, as far as Bal Thackeray, you said, let me tell you, it's not that Rahul Gandhi ji has remembered now. I would like to remind you that when Rahul Gandhi ji came for Bharat Jodo Nyay Yatra, he went to the Smarak and see this. This is the manifesto of Mumbai.
Shiv Sena Congress calls party. Here it is. Shiv Sena called Bala Saheb Thackeray Hindu Hriday Samrat. Do you agree with that or not? Is he a Hindu Hriday Samrat? So what happened? No, is Yes, he or not? हिंदुओं की जान है बाला साहब ठाकरे. Times are changing. Okay, times are changing. Elections are here. You're smiling there, Mr. Pandey. But please tell me, why do you think people should vote for the BJP here in Mumbai? राजदीप, फर्स्ट ऑफ ऑल बाला साहब की पुण्यतिथि पर उनको नमस्कार करते हैं. आई विल स्टार्ट माय स्टेटमेंट. राजदीप, व्हाई पीपल विल वोट फॉर मी, फॉर बीजेपी, फॉर महायुति? द रीजन इज वेरी क्लियर. The kind of development we have done and the stability and security. Charan Singh Sapra ji is talking about that some stray incidences. Just you remember. Stray. Listen to me. This is very unfair. No, he did not. This is very unfair. No, 1 minute. This is not right. Audience. After that, I'll let you respond. But please I am don't saying, interrupt. Please go in ahead. this city, Yes. on 26/11, 200 people were butchered and what they were doing? Every year, Mumbai was bombed by Islamic terrorists. Train blast, Mumbai blast, Ghatkopar blast. So what I am saying, Please, audience, please. After May 2014, Ji. have you heard single Islamic terror attack in Mumbai? So that's why people will vote for me. Rajdeep. Why people will vote for me? Because we are giving security. We are giving security and stability. And as far as development is concerned, सुनने दीजिए, Rajdeep ji is concerned, the kind of development has happened in Mumbai and in surrounding areas, everybody is well aware. Whether it is the Delhi-Mumbai expressway, Samriddhi Mahamarg, Atal Setu, 40 years Congress was waiting to complete Nhava Sheva Sea Link. Their plan was coastal road. What they were doing, they did nothing. We are trying to decongest the city. And I am telling you, on your channel I am saying, Mahayuti will win more than 24 seats out of 36 in Mumbai. Just wait for this. Rajdeep, Okay. Rajdeep. Now, you know, 1 minute, 1 minute. Charan Singh Sapra, you wanted to intervene. Please, let's intervene after everyone has finished. That's the nice way. ये हम मुंबई है. तो मैं अभी एक उत्तर दूसरे दे की दूं? सुनते हैं. So, he said, you are highlighting stray incidents. Your response. Stray incident. What a shame. No, now you must let him speak. इनका नेता जो पहले महाराष्ट्र राज्य का मंत्री था, उसका कत्ल हो जाता है. बिश्नोई गैंग है या क्या है वो तहकीकात के बाद में निकलेगा. ही सेइंग स्ट्रे इंसिडेंट. इन्हीं का नेता ब्लॉक प्रेसिडेंट सड़क पे मारा जाता है. दैट इज अ स्ट्रे इंसिडेंट. तो स्ट्रे इंसिडेंट यानी आपके नेताओं ने तो आपके नेताओं ने Charan Singh Sapra, he is claiming that terrorism was there in Mumbai, train blast, attack of 26/11. Your response. स्ट्रे इंसिडेंट, यू नो, ही मीन्स टू से इनके नेताओं ने तो स्ट्रे डॉग भी बोला है लोगों को. वो भी बोला है स्ट्रे डॉग. अगर मैं वो भी गिना सकता हूं. नाउ इफ ही इज टॉकिंग अबाउट टेररिज्म, Yes. What happened in parliament during Atal Bihari Vajpayee's time? क्या हुआ था? अटैक नहीं हुआ था पार्लियामेंट पे. ये ध्यान भटकाना चाहते. They don't want to talk on the issues of people of Maharashtra. They don't want to talk on inflation. They don't want to talk on unemployment. They don't want to talk on agrarian crisis. They don't want to talk on financial crisis. 8 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है. कौन भरेगा? हम भरेंगे, हमारे माँ बाप भरेंगे. Okay, तुम नहीं भरोगे. let Mr. Pandey or Mr. Hegde respond to this question. The question which is being raised, very simple. When Prime Minister Modi has attacked the opposition saying they give revdies, they give freebies. Now your government is being accused कि यार पैसे की तिजोरी खोल दी है. You want to give whatever it takes. In fact, the rumor, according to or the speculation in Mumbai, Krishna Hegde, I won't use the word rumor, speculation is you are willing to pay 5,000 rupees a vote. इतना पैसा हो गया शिवसेना में, you are willing to pay 5,000 rupees a vote. Can I True respond or just not? one line? Let then he can respond. Okay. Only one line. I am Yes. saying, Yes. can anybody say that after 2014 May, any terrorist attack has taken place in Mumbai? In their place, what was happening? Mumbai में कह रहे हैं. I am talking about Mumbai. Even in the country, tell me whether any terrorist attack has taken place in Delhi. Am I right or wrong? Tell me. One minute. Now, let Krishna Hegde respond. Krishna No. Hegde. He said anywhere in the country. I will let you respond, sir. 1 minute. 1 minute. Krishna Hegde, simple question I put. Everywhere I am going, I am hearing about use of money power in this election on a scale that has not been seen. There are reports that your party is willing to pay 5,000 rupees a vote केवल जीतने के लिए. And then you say, where is the money coming from? ये जहां मैं जाता हूं मुंबई में आप ही के होर्डिंग्स है. पैसा कहां से आया? देखिए,
काम करने वाले सरकार को, Please go ahead. काम करने वाले English, सरकार, please. हाँ. all those who work हाँ. will get support. और हमने हमारे लाडकी बहनाओं को 5,000 नहीं 7,500 रुपया दिया है 5 महीनों में, और ऐसे हमने अनगिनत योजना दी. Senior citizens, we gave yojanas to we have given yojanas to senior citizens. Madam, we have please. given yojana to youth. Madam, please. We have given yojana for Madam, this is infrastructure. not right. We have given yojana Madam, for this is not farmers. right. We have given Please yojana. no. We have given yojana for farmers. We have given yojana for senior citizens. We have given free transport to women. We have given farmers compensation. We have given 12,000 rupees. Okay, he's saying the state has No, just no, 1 I minute, will Mr. tell you, Hegde. yeah. He's saying the state has run an 8 lakh crore deficit debt as a result, and Maharashtra, therefore, which was seen as one of India's industrial powerhouse, is slowly facing possibly a financial crisis in the future. Your response? During that time, Maharashtra had gone down to number 3, number 4, and number 6 in every position. Today, in industry, commerce, agriculture, infrastructure, everywhere, Maharashtra is number 1. Over that, Maharashtra is driving a $500 billion economy, rushing to a $1 trillion economy, and the state can afford this 46,000 crores, which we are giving to our Ladli Behnas. Okay. We are a government which is elected for the people, by the people, and of the people, and we will serve the people of Maharashtra whatever they want. They went to court against us. Okay, one minute. Now, I've heard you. Each one of you. No, equal. I will let. Sir, I will come. FD has been reduced from 82,000 crore to 52,000 crore. FDs have been reduced. Okay, one minute. I will, you see, let's give everyone equal chance. I will give a few questions to the audience. Anand Dubey, please respond. There are 2 allegations that are being made. एक कहा जा रहा है कि when you have been in power for BMC over the last 30 साल से तो चुनाव ही नहीं हुए, unfortunately. But the fact is, जो भी गलती होती है मुंबई में, फिंगर आपके ऊपर पॉइंट होता है कि शिवसेना यूबीटी मुंबई के कंट्रोल में थी, बीएमसी के कंट्रोल में थी. इफ थिंग्स गो रॉन्ग दे विल ब्लेम यू. वो बार बार कहते हैं आप पर उंगली उठाते हैं. अब अगर मैं इसको उल्टा कहूं कि मुंबई मतलब शिवसेना और शिवसेना मतलब मुंबई, ठाकरे मतलब मुंबई शिवसेना और मुंबई ठाकरे मतलब शिवसेना, इसको ऐसे कहिए ना. देखिए, मुंबई की जो जनता है ना, इसको प्रेम चाहिए, इसको सम्मान चाहिए, इसको विकास चाहिए. अभी डेवलपमेंट की बात हो रही थी. कोस्टल रोड बीएमसी का सपना मतलब शिवसेना का सपना. हमने शुरुआत की, फीता ये लोग काट रहे हैं. फीता ये काट रहे हैं. मेट्रो वर्सोवा से घाट को याद होगा, पृथ्वीराज चौहान जी ने उसका उद्घाटन किया था, उन्होंने चलाया. तो ये जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है. और अभी ये सादगी की बात करें, एक मिनट. अभी ये सादगी की बात करें. आपने पूछा पैसा कहां से आता है. अरे पैसा तो चंद उद्योगपतियों के यहां से आता है, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री है जो हेलीकॉप्टर से किसान बनने जाते हैं. ये अपने गांव हेलीकॉप्टर से जाते हैं और वहां पे फोटो खिंचवाते हैं हल चलाते हुए. ये तो ऐसे लोग हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार करके आप कह रहे हैं आपके 1 मिनट प्लीज. नाउ लेट अस नॉट से कि आपके पार्टी में भी ऐसे नेता नहीं हुए हैं जिनकी एसेट्स बहुत इंक्रीज हुए. महाराष्ट्र में सभी नेताओं के एक बार सरकार में आते हैं एसेट्स इंक्रीज हो जाते हैं. बट चरण सिंह छापरा, द रियल इश्यूज ऑफ मुंबई इज अर्बन रिन्यूअल. इफ आई लुक एट द रोड्स, कोस्टल रोड तो बहुत अच्छा है, मैं आपको और रोड्स पे ले जाता हूं, हालत वैसी नहीं है. आप कोस्टल रोड दिखाते हैं अपने फोटोग्राफ्स में. लुक एट द रेस्ट ऑफ मुंबई, look at the state of schools, look at the state of local level health centers. Would you concede that जो मुंबई के इंचार्ज होगा, मुंबई का बिग बॉस, मुंबई को चाहिए क्या? लेट द ऑडियंस, क्या चाहिए सबसे ज्यादा मुंबई में? क्या चाहिए? हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें स्कूल अच्छा चाहिए, हमें रोड अच्छा चाहिए. हम कांग्रेस से हैं. अच्छा ठीक है, कांग्रेस से. और कौन है? क्या चाहिए मुंबई को? क्या चाहिए? विकास का मतलब क्या चाहिए? विकास का मतलब क्या? तगड़ा विकास चाहिए, सब कुछ. अच्छा, तगड़ा विकास नहीं, क्या चाहिए? ट्रैफिक की समस्या सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र में ट्रैफिक की समस्या कम होनी चाहिए, जहां पे बहुत सारी समस्या गाड़ी की. विकास, प्लीज एक्सप्लेन. चरण सिंह छापरा, द बीजेपी इज सेइंग दे आर गोइंग टू विन दिस इलेक्शन ऑन देयर क्लेम ऑफ विकास. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? व्हाट इज विकास? देखिए, आपने सवाल पूछा था, यू आस्क्ड देम कि पैसा कहां से आता है. राइट. तो खोखे सरकार को पूछने की जरूरत है क्या? इनके विधायक ने कहा था, देयर ओन एमएलए सेड 50 खोखे सब कुछ ओके. व्हाट डज दैट मीन?
तो वो खोखे हैं, तो वो खोखे बट रहे हैं। इनका स्लोगन क्या होना चाहिए पता है? Answer my question. बांटेंगे, वो बटोगे तो कटोगे नहीं, लूटेंगे और बांटेंगे, ये इनका स्लोगन होना चाहिए। No, no, That is one their minute, slogan. one minute. Now- What now is I'm coming Vikas? here. People are saying किसी ने traffic का issue किया. Someone mentioned schools, hospitals. For the last 20 years, there's a sense that urban renewal of the kind that is needed has not taken place. One coastal road, Atal Setu, is not going to change the face of Mumbai. Do you You're right. accept that or not? No, I accept. And now there is a need that we need good schools, good BMC schools, good schools of the run by the state government. We need good hospitals also. Their infrastructure in hospitals in Mumbai is not very good. Let me tell you very frankly. That needs to be improvised. So there are so many things on which we need to work. But Right. basically law and order is the issue, and corruption is also an issue. The kind of corruption these Mahayuti Sarkar has done. What are they doing? They are giving entire Dharavi project to Adani. Why? That airport to Adani. Why? The power projects to Adani. can I- Why? I will- No, I will let me answer- complete. I will answer it. No, you made a point. No, you had, Only one, your only time one. is, Only let him one. respond. You have made a For serious allegation. 429 acres of Dharavi, they are giving 990 acres of Okay, land 1 to minute. Adani. Okay, let, Sharat 786 Singh lakh Sapra. crore. 786 lakh crore rupees worth project. They are giving it to Adani. ये भ्रष्टाचार. Okay, you और made पहले, your point. पहले जो कंपनी थी उसको किस तरह से इन्होंने ट्विस्ट Sir, किया वो भी मैं बोल सकता Charan हूँ. Singh So at that Sapra, time will go into that. Charan Singh Sapra, let him respond. Rajiv ji, you have been, they are making an allegation that you are selling out Mumbai to one industrialist. मुंबई को गिरवी रख रहे हैं. एक ये मेरा उद्योग चार्ज है. Now let him respond. Rajdeep, can I No, take he it? must respond first. Rajiv. Rajdeep, Yes. the issue is they are talking about the Dharavi project given to Adani. Yes. Their CM is going, and in Telangana, what they are doing, they are aware. So they are saying, I'll take it. no, this is very. One minute. Second point. No, Rajdeep, he's asking a direct. He's I'm- claiming. no, this is wrong. I'm giving a This direct is goal answer. post change. Please this respond. project. Rajdeep, give me No, a- yes. Yeah. Give the right answer. Since 2007, Yes, 1 minute, please. umpteen number of tenders were floated for Dharavi. Yes. During their regime also, no one came and took the tenders. Three time Dharavi master plan was made. No one took the tenders. Ultimately, one Adani group came. He was the richest man in the world. Biggest corporate in the world. We should be proud Rajiv. that our corporate Rajiv. is one of the biggest in Can I India. complete No, my no, point? there You is no cannot say corruption. that we sold. Rajdeep, He has the misguiding. capacity to build Dharavi. Sir. He can build Dharavi. Second thing, let me tell you. These people did Vasuli from Metro, Coastal Road, RA, The Atal earlier Setu contract contractors. was of Everybody 5,700 constructed to a Okay, so standard. you are saying And complete they are my talking point. about money. Only one line. You Sir, did not the allow me to earlier- complete. the earlier- Let him complete. Charan Singh Sapra, let him Okay, complete. let him I am complete. saying, Yes. you are such a senior journalist and you are reporting unsubstantiated truth that this government is giving 5,000 rupees for votes. These are the charge that has been made No, by they the charge. opposition. They are useless people. They will keep on making Oh, charge. you are very useful about- Rahul They are Gandhi. useless. Rahul Gandhi. That He is the Indian most useless constitution will be He is the scrapped. most useless Tell me, person Rajdeep here. Sardesai. Now, Can what is anybody? talking? Can anybody? Can anybody? What on is this talking? side- 1 minute. Can Please stop anybody? I am Rajdeep. I am one asking. He can't talk like I this. am not talking about minute. you. No, I am talking about useless. Congress party. No, you can't. No. I am saying How only can you one talk thing. Congress is a useless party. No. How can you Allow say? me to How complete. can- No, I will Yes, not sir, allow you. Rajdeep. I will not allow you. No, How no, can no, you no. say that? No. I will not allow you. This Rajdeep, type I of will not Okay, allow I you. am. No, you can't do this. acceptable. One You minute, can't 1 minute, do 1 this. minute. This Rajdeep, cannot be Are done. we going to allow? Rahul 1 Gandhi minute. We was are not- talking No, false no. things This about is- Indian This type of constitution being language scrapped. is No, not no, no, acceptable. no. How can No. we take Not this word? acceptable. No. Can it be done? This is not fair. Word? No. No, this is not fair. This is not fair. This is. No, How can he say useless? Arey, You can't say useless. Yo, don't You try to can't say intimidate. useless. Don't try to intimidate. Oh, no Don't try to intimidation. intimidate. Ah. Don't try this No, gundagardi here. no, but एक you मिनट. can do gundagardi. You can do that gundagardi. What? एक मिनट पुलिस वाले जरा You can do this gundagardi. एक मिनट You can say useless. You can say useless. You can say useless. Or No, what? no, 1 minute. Please, Mr. Sapra. No. Please go back. How can he say useless? No, that is. Who has given him the right to You say can useless? respond to him. Why do you have to? No, this is not fair. This cannot be One the minute. case. No, he has to be in What limits. I'm saying. He has to be in limits. He has to apologize. Okay. Rajdeep, Let him apologize. I am saying This Rahul type of Gandhi was language talking is about not the acceptable, Constitution. sir. Your Audience. This is That's our why I said Mumbai, that. Maharashtra. Narendra Modi is a fraud. One minute.
Ladies and gentlemen, we've had a unfortunate situation here where a word was used which has led to a section of the audience from the Congress party objecting to the word of the useless. Okay, 1 minute. हमें एक दूसरे को सुनने की आदत होनी चाहिए. However, 1 minute, Mr. Pandey, 1 minute now. 1 minute. No, this is not 1 minute. Everybody has a right to use to speak their mind. It is better that you don't use personal words. But my limited, okay, in conclusion, sir, we have traveled across Maharashtra. This is the land of Phule Shahu Ambedkar, right? In a land like this, we don't want to have confrontation. मैं बस आपसे इतनी दरखास्त करता हूं. मैंने माइक इसलिए बंद किया क्योंकि इस तरह से जो हो रहा है उससे जनता को रॉन्ग मैसेज जाता है. मैं आपसे बस इतना ही कह रहा हूं. We don't want to use personal language against anyone, and he has agreed. But I just want to say one, Mr. Charan Singh Sapra, he has agreed. I am just going to say one thing. I have traveled across Maharashtra for the last 10 days, and we met people across from different segments of society. This is a wonderful state. ये हमारा महाराष्ट्र है. Maharashtra, I believe, deserves better politicians across the board. अच्छे नेता होने चाहिए जो जनता की सेवा करते हैं. Very good. Whichever party they belong to. I think we accept that. All parties accept that. And I hope that you all will follow that whoever comes to power, महायुति आए या महाविकास आघाड़ी आए, मुंबई की सेवा करिए, जनता की सेवा करिए. And एक दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप से, I don't think Maharashtra will go ahead. So I want to leave it there because we have run out of time because of this unfortunate incident that happened just now. When we return, I will be joined by the man who's in charge, Eknath Shinde. I'll be speaking to him. You've been watching Maharashtra Maza and you've been a wonderful audience. Thank you. Dhanyavad. आणि आपण बघत राहा India Today. Back in a moment. Jai Maharashtra. Jai Hind. क्या आप मानते हैं कि ये चुनाव जो है कांटे की टक्कर का चुनाव है? घोषणा शिवसेना, शिवसेना। जहां लाडली बहन आपके लिए वोट ला रही है वहीं सोयाबीन आपको वोट गवा सकता है. नहीं. क्या आपको लगता है मराठा आरक्षण भी एक चैलेंज है? जो आप विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ यहाँ आकर बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बात करते हैं, एक है तो सेफ है. उद्धव ठाकरे जी, उनका कहना है कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात जा रहे हैं. आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे आगे बढ़े हैं कांग्रेस के वोट बैंक में. मुख्यमंत्री कौन? आपके यहाँ एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री इस समय है. सवाल उठेगा कि कौन वो चेहरा है. Hello and welcome to this India Today special. Namaskar on Maharashtra Maza once again. आपल्या बरोबर आहेत. With me is the Chief Minister of Maharashtra, Eknath Shinde. नमस्कार. नमस्कार. शिंदे जी, पिछले 10 दिन में हम करीब 28 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के घूमे, तो पूरा महाराष्ट्र का एक तस्वीर मिला. इसलिए हम आपके पास अब आ गए हैं ये जानने के लिए कि क्या आप मानते हैं कि ये चुनाव जो है कांटे की टक्कर का चुनाव है? कहीं ना कहीं ये टफ फाइट है और ये एक तरह से अभी तक कोई ये नहीं कह सकता कॉन्फिडेंटली कौन जीतेगा महाराष्ट्र. मैं कहता हूं हम जीतेंगे महाराष्ट्र, हमारे काम के बलबूते पर. मेरा खुला चैलेंज है विपक्ष को, 2.5 साल में
आपने कितने काम किए बताओ, कितने काम पर रोक लगा दिए बताओ, कितने काम को रोक दिया, कितने काम पर स्टे दिया ये बताओ, हमने कितने काम शुरू किए, कितनी योजनाएं शुरू की ये हम बताते। होने दो दूध का दूध पानी का पानी। पर सर एक तरह से यही बात मैंने आपसे सुनी थी लोकसभा टाइम पे, और तब लोकसभा में क्या हुआ, विपक्ष को 31 सीटें आई, एक इंडिपेंडेंट, और आपको 17। क्या फर्क हुआ है 4 महीने पहले मई के महीने में और अब नवंबर के महीने में 4-5 महीनों बाद क्या फर्क पड़ा? क्या फेक नैरेटिव बार बार चलता है? कौन सा फेक नैरेटिव? संविधान बदलेंगे, आरक्षण जाएगा, मुसलमानों को डराया, क्रिश्चियनों को डराया, आदिवासियों को डरावा, शेड्यूल कास्ट को डराया, ये क्या है? ये अब ये चुनाव जो है स्टेट इलेक्शन है, ये लोकल मुद्दे है, लोकल इश्यू ये लोकल इश्यू पे लड़ाया जाता है। आपके नेतृत्व पे लड़ा जाएगा। अभी हम टीम बनकर लड़ रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं फेक नैरेटिव उनका था। फेक नैरेटिव था जो चला मई के महीने में, संविधान खतरे में है, आप कह रहे हैं वो नैरेटिव नहीं है। अब इस बार नए नैरेटिव्स आएंगे। एक नैरेटिव आया है जो आपने शुरू किया, लाडकी बहन, जिसका मैंने देखा है महाराष्ट्र में। नैरेटिव है, नैरेटिव हमने योजना चालू की। योजना, आपकी योजना एक ही नहीं कई योजनाएं की, पर उसके बारे में बहुत बात होती है। जहां भी हम अच्छा है, उसके बाद चर्चा तो है। चर्चा में ये भी देखा कई महिलाओं ने कहा बहुत अच्छा है, और आपके बारे में कहा कि शिंदे जी की ये योजना, शिंदे जी की योजना, लेकिन इसके साथ साथ कहा देखिए महंगाई बहुत बड़ी है, देखिए कीमतें बहुत बड़ी है, तेल के डिब्बे की प्राइस बढ़ी है। तो महिला ये भी कह रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ी है, लाडकी बहन भी अच्छी है। क्या कहीं ना कहीं आप अभी भी समझते हैं लाडकी बहन गेम चेंजर है कि नहीं? देखिए सिर्फ लाडली बहन नहीं है, इसमें लाडले भाई भी है हमारे। आज तक मुझे बताओ कि सरकार में, इस राज्य में किसी के खाते में पैसे डायरेक्ट डीबीटी हुए थे? ये आर्थिक उनको हमने आजादी दी है, आज उनको मांगने की जरूरत नहीं है, और विपक्ष ने उनको पूरे बदनाम कर दिया। ये योजना चुनावी जुमला है, लेकिन हमने जो कहा वो करके दिखाया। आज अप्रेंटिसशिप, आज 2 लाख लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है। नहीं जुमला नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पैसे, आप लोगों को पैसे देकर उनके वोट खरीद रहे हैं। ये विपक्ष कह रहा है ये एक तरह से आपने महिलाओं को उनके वोट खरीदने के लिए ये स्कीम की, और चुनाव के बाद ये स्कीम बंद हो जाएगी। वही तो कहते हैं, ये कांग्रेस नहीं है, ये एमवीए नहीं है, ये चलेगी स्कीम। ये कर्नाटक को नहीं है, ये तेलंगाना हिमाचल में ऐसे ही फंसाया। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने एक बार फंसाया था, बिजली बिल माफ करेंगे, बाद में सरकार में आ गए, बोले प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। हम ये योजना जो है चुनाव को सामने रख के नहीं ली है। हमारी सरकार का फायदा लोगों को होना चाहिए, आम आदमी के जीवन में बदलाव होना चाहिए, इसलिए हमने किया है। मुख्यमंत्री जी, मैं जब घूम रहा था मैंने देखा खासकर कि विदर्भ और मराठवाड़ा में कुछ मुद्दे उठे हैं। सोयाबीन का जो दाम है वो एक बड़ा मुद्दा है। कृषि क्षेत्र में कई इलाकों में हमने देखा कि किसान जो है वो नाखुश है, उसको लगता है उसको अपना दाम नहीं मिलता है। क्या आप मानते हैं इस चुनाव में रूरल एरियाज, ग्रामीण एरियाज आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, खास करके विदर्भ में और मराठवाड़ा में जहां मराठा आरक्षण एक फैक्टर है? देखिए, किसान को हमारे जितने सहयोग और मदद आज तक के किसी सरकार ने की। मैं खुद ही किसान का बेटा हूं, किसान की दुख दर्द को जानता हूं मैं। बट किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं इस राज्य में, और इसीलिए तो नहीं आत्महत्या होनी चाहिए, इसलिए 12,000 रुपए सालाना हमने दिए, 6,000 प्रधानमंत्री, 6,000 राज्य सरकार, 1 रुपए में पीक बीमा योजना दे दी, क्रॉप इंश्योरेंस दिया है। आज हमने कहा है कि जो पंप खेती करते हैं उनकी बिजली को बिल माफ करेंगे। आज हमने 2 साल में 15,000 करोड़ रुपया इनको मुआवजा दिया है, 45,000 करोड़ रुपया इनकी अन्य स्कीम जो है उनमें हम खर्च किया है। आज आपने कहा कि सोयाबीन में और कपास को 5,000 रुपये हेक्टेयर का हमने दिया है गैप भर के। और अभी आपको बताता हूं कि खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सोयाबीन और कपास, ये बड़ा लेट कह दिया उन्होंने कि सोयाबीन और कपास के लिए हम दाम देंगे, अब 6,000 रुपए देंगे, गैप फिल करेंगे, हम गैप फिल करेंगे। थोड़ा लेट नहीं हुआ इस पर? क्या आपको लगता है ये आपके सामने, जहां लाडली बहन आपके लिए
वोट ला रही है, वहीं सोयाबीन आपको वोट गवा सकता है। नहीं होगा ऐसा। मराठा आरक्षण, मराठवाड़ा में क्या आप मानते हैं, क्योंकि पिछली बार लोकसभा में केवल 1 सीट जीते थे आप मराठवाड़ा में, पूरा मराठवाड़ा मराठा आरक्षण जरांगे पाटिल के दम पर विपक्ष के साथ गया था। क्या आपको लगता है मराठा आरक्षण भी एक चैलेंज है? मराठा समाज को आरक्षण देना, उनको सुविधा देना हमारी भूमिका सरकार की जो पहले से एक ही रही है। हमने कहा मराठा समाज को हम आरक्षण देंगे, लेकिन ओबीसी या किसी अन्य समाज का कम करके नहीं देंगे। हमने वो करके दिखाया, विशेष अधिवेशन बुलाया, स्पेशल असेंबली ले ली और हमने 10% उनको आरक्षण दिया है। तो आप नहीं समझते ये फैक्टर अब है, जरांगे पाटिल फैक्टर नहीं है? बिल्कुल, अभी उनको पता है देने वाले हम हैं और नहीं देने वाले विपक्ष है। जिनको देने का मौका था तभी उन्होंने नहीं दिया। मराठा समाज को सिर्फ और सिर्फ उनका इस्तेमाल किया और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया। सत्ता में आए इतने साल, लेकिन मराठा समाज को वंचित रखा है। हमने दिया, देवेंद्र जी ने भी दिया और हाईकोर्ट में उसे प्रोटेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में सरकार बदल गई तो रिजेक्ट हो गया। मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं आपसे। ये कहा जाता है कि जरांगे पाटिल के पीछे एकनाथ शिंदे है। एकनाथ शिंदे ने ये मुद्दा उठाया था मराठा आरक्षण का, अपने आप को मजबूत करने के लिए कि मैं एक मराठा नेता हूं। आपको किसने कहा? ये चर्चा है। देखिए, ये सब चर्चा है, इसमें कोई दम नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुझे सभी समाज को लेके आगे जाना है। ये मेरा वो मेरा नहीं है, ऐसा नहीं चलता है। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आपको सभी समाज को लेकर आगे जाना है। आपने ये भी कहा कि ये चुनाव आपके काम पे आप लड़ना चाहते हैं। उस बीच में एक नैरेटिव आ जाती है जिसके बारे में भी जिक्र अब हो रही है, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। और इससे क्या हो रहा है, आप ही के सहयोगी अजीत पवार कह रहे हैं ये गलत है, आप ही के सहयोगी अशोक चव्हाण कह रहे हैं इसकी कोई जगह महाराष्ट्र में नहीं है, इस तरह की बातचीत की, बटोगे तो कटोगे। पंकजा मुंडे ये कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे जो आप विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ यहां आकर बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बात करते हैं एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है, ये कहने में कोई गलत है? नहीं, सेफ किसकी डर का अब आप डर फैला रहे हैं। नहीं, आज सेफ किसके बारे में? आज हम देश में कहीं पर भी जाते हैं तो हमें सुरक्षित महसूस करते हैं। तो महाराष्ट्र सुरक्षित है ना? तो फिर एक है तो सेफ है कहने की क्या जरूरत है? यानी आप कहीं ना कहीं टारगेट किसी को कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जो फेक नैरेटिव में, हम जो विपक्ष के फेक नैरेटिव में उनको सफलता मिली, अभी हम वो सफलता उनको नहीं मिलेगी। इसीलिए एक होकर, वो एकजुट होकर वोट करो। क्या तकलीफ है? हमने कहा है होकर कौन वोट करे? हिंदू वोट बैंक की राजनीति है, हिंदू वोट बैंक की राजनीति है। परसेंटेज बढ़ाना वो तो सबका काम है। ये हिंदू क्यों इसमें हम क्या आप कह रहे हैं हिंदू एक हो जाओ? क्योंकि उसी के साथ आप ही के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद की बात करते हैं और कहते हैं धर्म युद्ध, वोट जिहाद वर्सेस वोट धर्म युद्ध। कहीं ना कहीं क्या हिंदू मुस्लिम राजनीति हो रही है, जिससे आपके स्कीम्स पर बारे में इतनी चर्चा नहीं हो रही इस समय जितनी इस जो लोगों को स्कीम का फायदा मिला है जी, वो ले रहे हैं, वो जरूर इस चुनाव में हमारे साथ है। क्योंकि हम अब फिर एक बार बताता हूँ कि ये चुनाव को सामने रखकर हमने कोई स्कीम नहीं की है। हमने तो जैसे तो फिर आपने 2 साल पहले जब आप मुख्यमंत्री बने तब आप लाडकी बहन ला सकते थे। आपने लाया लोकसभा चुनाव के हार के बाद। नहीं, उसमें तो लेख लाड़की लखपति योजना लाई, किसानों की योजना लाई, पढ़ाई की योजना लाई, कई योजनाएं पहले लाई हमने। ये तो शुरुआत कर दी, ये सिलसिला जारी है। तो इसको तो प्रिपरेशन, ये पैसे की बात है, हम ऐसे बोलने वाले में नहीं है। एक बार चुनाव हो जाए हमारा काम खत्म। नहीं, ये कहा जा रहा है आप लोग ये स्कीम पूरा परमानेंट चालू, परमानेंट स्कीम है, लेकिन इससे महाराष्ट्र के फाइनेंसेस कैसे होंगे? आपका जो डेट है 7 लाख करोड़ के ऊपर जा रहा है, कहां से पैसे आएंगे? हमारे पास काम भी तो उतने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना है, इंडस्ट्री भी आ रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, जीएसटी भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। और हमने कोई भी गाइडलाइन का वायलेशन नहीं किया है। जो जीडीपी से
25% के अंदर लोन है, हम 17.5 है, FRBM में 3 से नीचे। यह इंटरेस्टिंग आप ये कह रहे हैं, कोई वायलेशन नहीं किया। आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। वहीं मैं उद्धव ठाकरे से बात कर रहा था, उद्धव ठाकरे जी, उनका कहना है कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स गुजरात जा रहे हैं। उनका कहना है, उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स लिस्ट आउट किए और कहा कि एक तरह से महाराष्ट्र के साथ धोखा किया जा रहा है, क्योंकि गुजरात को प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र को आने चाहिए वो वहां जा रहे हैं। टाटा एयरबस से लेकर वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट का उन्होंने जिक्र किया, डायमंड बोर्स का जिक्र किया, कहा ये सब गुजरात जा रहे हैं जो महाराष्ट्र में आने चाहिए। ये सब झूठ है, ये भी फेक नैरेटिव है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, झूठ बोलना, दबा के बोलना। आज वेदांता, तब हमारे सरकार को 2 ही महीने हुए थे, पहले वही लोग थे, उनसे कंटाल के चले गए। उनको पता है कि इनके पास से कोई सहयोग नहीं मिलेगा, उनको क्या मालूम था। आप उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। वही तो है, वो कह रहे हैं उनकी वजह से प्रोजेक्ट गुजरात चला गया। वो कह रहे हैं आपकी वजह से। अरे 2 महीने में, वो कह रहे हैं अमित शाह नरेंद्र मोदी के दबाव में आके ये प्रोजेक्ट 2 महीने में कोई भी प्रोजेक्ट, कोई इंडस्ट्री यहां से वहां जाती है, उसको पूरी तैयारी करनी पड़ती है। और आज मैं बताता हूं, उनके 2.5 साल में कितने उद्योग यहाँ आए और हमारे 2 साल में कितने आए, मैं गिनाता हूं। आप कंपैरिजन के लिए तैयार है, क्योंकि उनका कहना है उनके 2.5 साल में कोविड था, इसलिए कोविड किया है सर। और अगर वो रहते तो भी कोविड चलते रहता था। नहीं सर, आप और कोविड के पीछे छुप कर आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग आपने ये जो बात की, क्योंकि जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया बड़ा पर्सनल हुआ एक तरह से। उन्होंने कहा कि आप एकनाथ शिंदे को पूछिए कि जब वो रैली करते हैं वो बाला साहेब ठाकरे का क्यों तस्वीर लगाते हैं। उनके खुद के पिताजी की तस्वीर लगाए, उन्होंने मेरी पार्टी चुराई है, मेरे पिताजी की तस्वीर वो लगा रहे, वो तस्वीर हटाकर एकनाथ शिंदे को कहिए उनके पिताजी की तस्वीर। ये चुराने का बाला साहब ठाकरे जी इस राज्य के, जैसे हम आज बड़े जो हमारे महापुरुष होते हैं जी, हमारी आइडियोलॉजी है, ये उनके पिताजी है, लेकिन विचारधारा हमने ली उनकी। उन्होंने विचारधारा को त्याग दिया, कांग्रेस के साथ गए। वो तो असली गुनहगार है, जो बाला साहब ठाकरे कहते थे ये कांग्रेस को कभी साथ नहीं जाना, ये मेरे पार्टी के कांग्रेस नहीं होने दूंगा। लेकिन निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए बाला साहब ठाकरे जी के विचार को छोड़ दिया। आप उनको गद्दार कह रहे हैं, वो अब तक आपको गद्दार कह रहे थे, आप कह रहे हैं उन्होंने हिंदुत्व से गद्दारी की। तो मैं बोलूं ना, आप कह रहे हैं ये नहीं कहूं? नहीं, ये आपका अधिकार है। अरे उन्होंने अपने खुद के गिरेबान में झांक कर देखना है। जो मैंडेट जनता ने महाराष्ट्र के दिया शिवसेना बीजेपी को, वो मैंडेट को तोड़ दिया, उसको भरोसे को तोड़ दिया, उनसे बेईमानी की, विश्वासघात किया, और कुर्सी के लिए, एक मुख्यमंत्री के लिए बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आज उनको नाम लेने का अधिकार भी नहीं, क्योंकि विचारधारा को ही त्याग दिया। सर, करीब 50 ऐसी सीटें हैं जहां बैटल आप और उनके बीच में है, और लोकसभा में भी हमने देखा था करीब 13 ऐसी सीटें थी डायरेक्ट फाइट, जिसमें आप 7 जीते, वो 6 जीते। अब 50 ऐसी सीटें हैं, और कई विश्लेषकों का कहना है ये बहुत ही अहम बन सकती है। ये 50 सीटें डिसाइड करेगी कि किसकी सरकार बनेगी, आप बनाम शिवसेना। वो तो लोकसभा में लोगों ने दिखा दिया है। वो तो इवन था, 7-6 था, आप थोड़ा आगे थे। हाँ, तो थोड़ा आगे, 42% और हमारा 48% स्ट्राइक रेट। वोट शेयर हमारे पास ज्यादा है, 19 में से 13% हमारे पास आया। उनके पास वोट बैंक अभी कांग्रेस का है। कांग्रेस का वोट बैंक है। हाँ। आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे आगे बढ़े हैं कांग्रेस के वोट बैंक में। जो बेस वोटर है आज हमारे पास है, और इसीलिए कोंकण में एक भी सीट नहीं मिली, थाना में नहीं मिली, संभाजी नगर में 3रे नंबर पे गए। सर अभी तो विधानसभा में दिखेगा। सर, एक मैं जैसे महाराष्ट्र घूम रहा था, एक मुझे दुख हुआ कि कई ऐसे इलाके हैं जो बहुत पिछड़े हो गए हैं। अमरावती, यवतमाल, वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, बेरोजगारी बहुत है, युवा कह रहे हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है। आप मुंबई, पुणे, नासिक में देख रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन बाकी इलाकों में नहीं हो रहा है। ये एक तरह से रीजनल बैकवर्डनेस की बात कई सालों से हो रही है, ऐसा नहीं है कि पिछले 2.5 साल से। क्या आपके पास कोई एक योजना है जो जनता को कन्विंस कर सकती है? एकनाथ शिंदे एक बार फिर अगर की सरकार बनती है,
महाराष्ट्र डेवलप होगा, केवल मुंबई, पुणे, नासिक नहीं। अभी देखिए नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे, कौन जाता था पहले नागपुर में, कौन जाता इंडस्ट्री बुल्ढाना में, कौन सी इंडस्ट्री अमरावती में जाती। अभी अमरावती, बुल्ढाना, संभाजीनगर, नागपुर सब जगह इंडस्ट्री जा रही। अमरावती में बड़ा मेगा टेक्सटाइल पार्क हो रहा है, इंडस्ट्री आ रही है, मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, एक रोड के वजह से। इसलिए हमारा प्लानिंग है डेवलपमेंट को डिसेंट्रलाइज करे, सब जगह रीजन डेवलप हो जाए, वही के वही लोगों को काम मिले, वही किसानों को फायदा हो, वैल्यू एडिशन हो, प्रोसेसिंग यूनिट हो, वहाँ लॉजिस्टिक पार्क हो, कोल्ड स्टोरेज की चेन हो, यहाँ पर इंडस्ट्री आए। तो ये जब कनेक्टिविटी होती है तब इंडस्ट्री नहीं, तो यही जो आप आज मुझे बातें कह रही है, क्या इसी से वो पहला सवाल जुड़ा है कि जब आपके बीजेपी के सहयोगी बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं या इस तरह वोट जिहाद की बात करते हैं, आपको लगता है ये गलत है? उन्होंने गलत संदेश दे रहे हैं, उन्होंने केवल विकास पर बात करनी चाहिए। देखिए एक होना ये गलत नहीं है, आप समर्थन कर रहे हैं इस बात। एमयूए एक होकर वोट करती है, वोट करने की अपील करती है, तो हम लोगों ने तो कितना काम किया है। ये काम के बलबूते पर एक होकर साथ आइए और वोट कीजिए, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाइए। तो इसमें क्या गुनाह है, क्या गलत है? ये अजीत पवार को आप कहिए, ये मुझे कहने से कोई अजीत पवार कह रहे गलत है, ये यूपी में चलेगा, महाराष्ट्र में शाहू फुले अंबेडकर। अरे भाई मैं आपको बताता हूँ, हमारी सरकार देखिए ये अपील करना, वोट परसेंटेज बढ़ाना, उसमें कोई जाति पाति का नाम लिया है, कोई धर्म का नाम लिया है, कोई इसको कुछ कहा है? ओके सर, ये बताइए, आप ही लोग सब इसको घुमाते हैं। अच्छा, आप हम पर हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आप ये अजीत पवार के साथ सॉर्ट आउट करिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अजीत पवार की बात आई, मुख्यमंत्री कौन? आपके यहाँ एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री इस समय हैं। सवाल उठेगा कि कौन वो चेहरा है, क्योंकि मैं पोस्टर देखता हूं, आपका चेहरा देखता हूं, मैं महाराष्ट्र घूमता हूं, आपका नाम बहुत लोग लेते हैं। एकनाथ शिंदे अगर महायुति की सरकार बनती है, फ्रंट रनर है कि नहीं चीफ मिनिस्टर की? अभी तो मैं मुख्यमंत्री हूँ, फ्रंट रनर है कि नहीं चुनाव के बाद? अभी हम तो, हमारा फोकस क्या है, अभी हमारे में कोई रेस नहीं है, कोई रेस नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। वहाँ लड़ाई है, वहाँ उनको पूछना चाहिए, मेरा चेहरा बनाओ, मुझे बनाओ। दिल्ली से गली तक घूम रहे नहीं, उद्धव ठाकरे कहते हैं मुझे कोई रुचि नहीं है अभी मुख्यमंत्री बनने में। अभी जब उनके दोनों सहयोगी ने कहा अभी नहीं होगा, तभी कहते हैं, पहले तो वही आगे जा रहे और थे। आपके महायुति में सुना है आप और देवेंद्र फडणवीस के बीच में कोई स्पर्धा है? हमारा बिल्कुल नहीं है, कोई स्पर्धा नहीं, कोई स्पर्धा नहीं। हमारा फोकस यही है, महायुति को पूरे थंपिंग मेजोरिटी से फिर लाना। हमें क्या मिला, इससे महाराष्ट्र को मिलेगा, क्या मिलेगा? सर, मैं ये इंटरव्यू जैसे मैं अंत करता हूं, मैं दर्शकों को बता रहा हूं कि 4:11 हुए हैं, शाम के नहीं सुबह के। आप ये बताइए, ये आप सोते कब है? क्योंकि जब भी मैं आया हूं वर्षा पे, आप 12 बजे के बाद रात को मिलते हैं और सोते हैं 3-4 घंटे। ये क्या है? एकनाथ शिंदे, सोना इतना आपको अच्छा नहीं लगता क्या? अरे आप लोग सोने नहीं देते। अरे आप हम पर अब डाल रहे हैं, आपने हमें इंटरव्यू दिया है 4 बजे सुबह, आप पर अभी भी मैं देख रहा हूं जोश है। आप कल सुबह सूरत से और एक दौरे पर जा रहे हैं, ये क्या, ये पावर है क्या? ये पावर एक जमाने में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर, एक लेबरर, काउंसलर बनता है, लेजिस्लेटर बनता है, मिनिस्टर बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। ये पावर कहाँ? ये केवल पावर की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे? ये बिल्कुल नहीं है। ये जो एनर्जी है, ये जो पावर है, ये जो टॉनिक है, ये पब्लिक से मुझे मिलती है। मैं पब्लिक का आदमी हूँ, मैं जमीन से जुड़ा हूँ। आज मुख्यमंत्री हूँ लेकिन कार्यकर्ता बनकर काम करता हूँ। ये उन्हीं की देन है, ये जनता का आशीर्वाद है। इसलिए मुझे ऊर्जा भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है और लोगों के बीच में जाकर मैं काम भी करता हूँ। देखेंगे 23 तारीख को क्या होता है एकनाथ शिंदे जी। लेकिन एक करिए, अगली बार जब हम इंटरव्यू करेंगे ना, 4:11 सुबह मत कीजिए, 4:11 AM और एक समय हम पीएम को करेंगे।
आप 4.11 को PM 4.11 PM 4.11 PM चलेगा, 4.11 AM में दिक्कत होती है, लेकिन आई विश यू ऑल द बेस्ट। कौन जाने क्या होगा, लेकिन आप कह रहे हैं आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि महायुति की ही सरकार बनेगी, त्रिशंकु नहीं होगी, मवा नहीं आएगी। पूरी तरह मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है, और लोगों ने तय कर लिया है, 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं महायुति की सरकार को लाने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब उद्धव ठाकरे जी को मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा आप आइए 23 को, यहाँ मिठाई की दुकान होगी मातोश्री में। अब वो कैमरा है, उस कैमरा में बताइए उद्धव ठाकरे जी को क्या कहेंगे आप? वो तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बतावे साहब। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जब ये अब वायरल हो जाएगा। चलिए एकनाथ शिंदे जी, आपने हमसे बात की, महाराष्ट्र माझावर आपण आपल्याशी बोलला, थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड देखते हैं 23 को किसकी जीत होती है और किसकी हार, और कौन बेगाना होता है अब्दुल्ला दीवाना। जीत महायुति की, जीत महायुति की। चलिए जीत महायुति की, देखेंगे क्या होता है। थैंक यू सो मच एकनाथ शिंदे जी, द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हियर ऑन महाराष्ट्र माझा।